करते हैं कि नहीं आप? बल्कि मेरा रिकॉर्डिंग होती है कि क्या कर रहे हैं आजकल, नहीं ऑन करवाने लगता है करवाती है कि नहीं? फिर मेरा भी ऑफ ही करती है, इसलिए कि वो क्लास तो है नहीं, फिर मैं इसमें नजर आती है, लेकिन मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, पढ़ चुकी हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग प्लीज ज्वाइन कर लें। एटलीस्ट मुझे इनको म्यूट नहीं करना, अनम्यूट करना, ये ऑप्शन करना है इसको, अलाउ पार्टिसिपेंट टू म्यूट देमसेल्फ, या मैं सबको कर दें अनम्यूट, फिर भी इन्होंने बच्चों ने। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज का जो है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ सिनेरियोज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टेस्ट है टर्म का 6 को, न्यू डेट इज 6 अक्टूबर। अच्छा, मैं आप लोगों से सिनेरियो बताऊंगी, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है, ठीक है? अच्छा, एक सिनेरियो है, was a 30 years old lady and she was infertile, and she was referred to the outdoor patient department. So she has a past history of sinusitis, childhood pneumonia and cough. She has expectoration of approximately 1 cupful of foul-smelling, tenacious and mucopurulent sputum per day. And there is no history of hemoptysis. Sputum isolate is positive for a Haemophilus influenza. So she coughs throughout the day and finds it very tiring. Her CT report states bilateral lower lobes mucus plugging and peribronchial scarring with intense exudate within the wall. So you will tell me, pick up the factors given in the scenario that are predisposing to her current condition. इसमें कौन कौन से factors हैं? Can you tell me? Okay, second question is give your diagnosis based on these factors. जो जो मैंने आपको factors बताए हैं उनकी base पे आप what will you make the diagnosis in this scenario? And the third question is what is the significance of her past history? Why it is why her past history is very important? Okay, Ahmad Hassan, please can you tell me the diagnosis of this scenario? Ahmad Hassan, can you listen me? आपको सिनेरियो समझ आया है?
Okay, the second scenario, चलो आप ये बताओगे. Ahmed Hassan, you will answer me this scenario, okay? A 34 years old man suddenly develops severe dyspnea with wheezing and is taken to emergency. On examination, his pulse is 95 per minute, respiratory rate is 15 per minute, and blood pressure is 130 by 80 millimeter mercury. And chest radiograph, it shows lucency in all lungs fields. So sputum cytology specimen, it shows Firstman spirals and charcoal laden crystals. And inflammatory cells, they were eosinophils. ठीक है, inflammatory cells में the most prominent cells, they were eosinophils. Okay, आप मुझे बताओगे अहमद हसन के what is this diagnosis? आपको क्या diagnosis समझ आता है? मैम एस्केरियोसिस है या पैरासिस्टिक निमोनिया? क्या है बेटा, थोड़ा सा जरा प्लीज क्लियर बताएं. आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, आप बोलें. एस्केरियोसिस है मैम. क्या, सॉरी, ये रेस्पिरेशन का बेटा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. रेस्पिरेशन की मैं आपको सिनेरियो बताया आपको. Okay, Alaiba Salim. Can you tell me the answer of this question? What is the diagnosis in this scenario? Alaiba Salim. यस मैम, सिनेरियो एक दफा रिपीट कर देंगी? हाँ जी मैं करती हूँ. A 34 years old man suddenly develops severe dyspnea with wheezing and is taken to the emergency. On examination, his pulse is 95 per minute. It means pulse raised है इसकी, ठीक है. Respiratory rate जो है वो इसका 15 per minute है. Okay, and blood pressure is 130 by 80. Chest radiograph, it shows lucency in all lung fields, and sputum cytology भी इसकी हुई है which shows Crustman spirals and charcoal laden crystals. कुछ पता चला इससे? और inflammatory cells, they are eosinophils. Now can you tell me the diagnosis? एस्मा कैसे आपने अजमा बनाया है? मतलब इसमें मैम क्या एक तो फीचर्स लगे सिम्टम आपको? उसके स्वेयर डिस्निया था और विजिंग थी, और ओके, और वो क्रिस्टल्स जो थे. ओके, स्पाइरल शेप्स, म्यूकस प्लग्स, ये कहाँ से आती है? फ्रॉम सब म्यूकोजल, जो म्यूकस ग्लैंड्स है ना, वहां से बेसिकली आ रहे होते हैं, ठीक है. यस मैम, ये इसकी मॉर्फोलॉजी में था. ओके, अच्छा सेकंड आप इसमें मुझे बताओ व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दिस डिजीज. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है आपको इसमें नजर आए हैं? मैम चार्कोल लेडन क्रिस्टल्स थे, वो क्रुस्टमैन स्पाइरल्स थे, ठीक है. और एयरवे वॉल की थिकनिंग है, ठीक है, राइट. और मेटाप्लेजिया, गोबलेट सेल मेटाप्लेजिया नजर आएगा हमें इसमें. अच्छा ठीक है. ओके, हाइपरट्रॉफी एंड चलो ठीक है. अच्छा अब इसमें मुझे बताओगे व्हाट इज द लैब डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, कि ये आपने जो भी डायग्नोसिस बनाया, अब इसका लैब में डायग्नोस कंफर्म करने के लिए आप क्या क्या टेस्ट करवाओगे? मैम लैब में हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे. अच्छा ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवा लिया. और कोई फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम वगैरह चेक करने के लिए नहीं करोगे कोई टेस्ट इस तरह से? यस मैम करवाएंगे. अच्छा चलो ठीक है. ओके, नेक्स्ट है अक्सा इकबाल. अच्छा अक्सा इकबाल, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, ठीक है. यू विल आंसर मी.
Scenario है a 20 years old patient diagnosed with cystic fibrosis. He underwent lung resection for transplantation. On cut section, lung shows markedly dilated bronchi filled with the purulent mucus which are seen extending to subpleural region. Pre-operative radiological examination, it shows bronchial dilation. So you will tell me what is the associated condition of lung called in this diagnosed patient of cystic fibrosis. Aksa Iqbal. आप unmute करें and answer me this question. Okay, Maham Shaukat. Maham Shaukat, can you hear me? Maham Shaukat. And Mahnoor Mudassir. Mahnoor Mudassir, can you hear me? Okay, Mariam Azhar. Mariam Salim. जो मुझे आंसर करेगा मैं सिर्फ उसकी अटेंडेंस काउंट करूंगी, बाकियों की मैंने किसी के अटेंडेंस नहीं काउंट करना। इसलिए जो मुझे आंसर करेगा मैं उसको उसकी अटेंडेंस सिर्फ मार्क कर रही हूँ और मैंने किसी के नहीं करनी। मरियम सलीम। ओके बेटा, मैं आपसे सिनेरियो आपको बताती हूँ, ठीक है? देन यू विल आंसर मी। इसमें है a patient, a 40 years old male patient, he complains of chronic cough for 5 years and expectoration of excessive purulent sputum. His condition partly improves with the antibiotic but then recurs again. Expectoration increases on awakening in the morning and on leaning forwards. The patient also has third degree clubbing. So tell me the diagnosis of this scenario. Can you tell me the diagnosis of this scenario? Okay, Zainab Zafar. And ये है सिद्रा जुबैर। अच्छा, किरण अफसर, कैन यू हियर मी? आपको सिनेरियो समझ आई है? क्लास 6 को आप लोगों का रेस्पिरेटरी, सीवीएस एंड ब्लड वेसल्स और हेमाटोलॉजी कंप्लीट इनका टेस्ट है आपका। ओके, आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई थी रेस्पिरेटरी की, ठीक है? सीओपीडी की, ठीक है? तो आप उसमें प्लीज मुझे उसी से देख के आंसर्स कर दो। एन्यूमरेट सीओपीडी, chronic obstructive pulmonary disease and give the pathogenesis of emphysema. सीओपीडी को आती है किसी को? जो मुझे बताएगा मैं सिर्फ उसकी अटेंडेंस काउंट कर रही हूँ। मोहम्मद वलीद उसामा।
ये बताओ कि COPD में क्या क्या आता है? मोहम्मद अनूश अख्तर। ओके, माइजा अफजल, प्लीज कैन यू डिफाइन एम्फीसीमा and its different types? अहमद रजा, आवाज आ रही है आपको? ओके, टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन, कंपैरिजन आपने करना है इसमें डिफरेंसेस का बिटवीन डिफरेंट। आप इसमें मैं आपको बता देती हूँ किस किस में आपने डिफरेंशिएटिव पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1 इज एम्फीसीमा, सेकंड इज ब्रोंकाइटिस, थर्ड इज ब्रोंकिएक्टेसिस एंड फोर्थ इज अस्थमा। ठीक है, आपने इसमें अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनेसिस, मेन एसोसिएशन और इन सबके क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें टेबुलेट द कंपैरिजन, इनका आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, इन फोर का। आफ्ताब अहमद, कैन यू डिफाइन एम्फीसीमा? बेटा मैं आपकी किसी की अटेंडेंस नहीं लगा रही, ठीक है? आप लोगों ने जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया, 2-3 स्टूडेंट है, ठीक है? मैं सिर्फ उनकी लगाऊंगी। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडी। तो बेटा आप लोगों को मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों ने करने हैं इसमें। नंबर 1 पे आप लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पता होना चाहिए, ठीक है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसकी व्हाट आर द मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज देयर एटियोलॉजी एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। ओके, एंड और इसी तरह से आपने ब्रोंकिएक्टेसिस में सेम करना है आपने कि इसमें व्हाट आर द मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस, व्हाट इज द एटियोलॉजी एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। और सेम इसी तरह इसमें एस्थमा, एम्फीसीमा, ठीक है, और दूसरी जो सारी स्मॉल एयरवे डिजीजेज हैं लाइक ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह का, ठीक है? इसमें नंबर 1 पे व्हेन वी सी द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मेजर क्या है, व्हाट आर द मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस? यू विल टेल मी मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस, दीज आर म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया एंड देयर सिक्रेशन। What are the major pathological changes in chronic bronchitis? There is mucus gland hyperplasia and hypersecretion. Okay, now come to the what is its etiology? In its etiology, the main is it is very common in tobacco smokers and it can also be due to the air pollution. And what can be the sign and symptom? In sign and symptom, there is always cough and sputum production. ये हो गई है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। नो कम टू द ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस की भी आपको मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस पता होने चाहिए। इसमें नंबर 1 पे देयर कैन बी एयरवे डायलेशन एंड स्कारिंग। ओके, रिमेंबर देयर कैन बी एयरवे डायलेशन एंड स्कारिंग। व्हाट इज द एटियोलॉजी? इन एटियोलॉजी में देयर इज परसिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है? एटियोलॉजी में
कोई आपके कोई persistent या severe infection चल रहा है और इसकी sign and symptoms will be और थोड़ी सी सेम होंगी किसमें में कफ होगी, फीवर होगी, फीवर होगा प्लस उसके अलावा देयर कैन बी अ प्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन भी होगा। ओके नेक्स्ट एजमा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होने चाहिए व्हाट आर द मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस देयर इज में वो होता है देयर इज ऑलवेज स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड देयर कैन बी इंफ्लेमेशन विद इंफ्लेमेशन के साथ हो सकती है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में आप लोग को ऑलरेडी पता है कि देयर इट कैन बी इम्यूनोलॉजिकल और इट कैन बी ड्यू टू अनडिफाइंड कॉजेज, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, अनडिफाइंड कॉजेज भी हो सकती है। और व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स, हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट, देयर विल बी episodic wheezing, cough, and there can be dyspnea in this patient. Okay, next is emphysema. Emphysema, अच्छा emphysema की anatomical site जो है that is always acinar और it major pathological changes क्या क्या होंगे, there will be air space enlargement and there can be ball destruction in this patient. And what will be the etiology? Etiology इसमें इनमें एक common है, it is always due to the tobacco smoking. Tobacco smokers में will be very common. Okay, sign and symptoms में क्या है, how the patient will present, patient will always present with the dyspnea. And और इसके अलावा there are also some small airway diseases like bronchiolitis. Bronchiolitis में there is always inflammatory scarring, obstruction of bronchioles. और इसकी etiology में भी it can be due to the tobacco smoking and it can be also due to the air pollutants. और इसमें clinical sign and symptoms will be there will be always cough but with dyspnea, ठीक है। इसमें आपको छोटी छोटी आपको डेफिनेशन भी होनी चाहिए, व्हाट इज एम्फाइसीमा एंड व्हाट इज एस्थमा, दीज आर द वाइवा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सीओपीडी में क्या क्या आता है, ठीक है, जो कि अभी आप लोगों ने मुझे नहीं बता सके हो, हालांकि आप लोगों का टेस्ट है। और इसके अलावा आप लोगों को these are the very important questions, ठीक है, तो प्लीज इनको मिस ना करें। अच्छा ओके, टेल मी ईमान बाबर, कैन यू लिसन मी? बेटा आप मुझे बताओ व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस, क्या होता है? ईमान बाबर, व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस? ओके, हलीमा नवाज, हलीमा नवाज, कैन यू टेल मी व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस? ओके, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। ब्रोंकिएक्टेसिस इज बेसिकली it's a permanent dilation of bronchi and bronchioles. Okay, bronchiectasis, it's a permanent dilation of bronchi and bronchioles caused by destruction of the muscle and elastic supporting tissue resulting from or associated with chronic necrotizing infection. So it is not a primary disease but rather is secondary to persisting infection or obstruction caused by a variety of conditions. Okay, remember it's not a primary disease, but it is always secondary to persistent infection or obstruction caused by a variety of conditions. Once it is developed, it gives rise to a characteristic symptom complex dominated by, और symptoms में क्या क्या होगा? There can be cough and expectoration of copious amount of purulent sputum. So how will you make the diagnosis? Diagnosis जो है इसका always depends on an appropriate history, ठीक है। सबसे पहले आप पेशेंट की appropriate history लेंगे, कब से है, sign and symptoms, और कोई आपको इससे पहले कोई इन्फेक्शन था इस तरह का या नहीं, ठीक है। और प्लस के अलावा देखने के लिए you will do the radiographic demonstration of bronchi dilation is very important, okay. So the conditions that most commonly predispose to bronchiectasis they include the following, इसमें कौन कौन सी conditions हो सकती हैं that can
ठीक है, इसमें दैट कैन मोस्ट कॉमनली प्रीडिस्पोज टू द ब्रोंकिएक्टेसिस को करती है। ठीक है, इसमें नंबर 1 देयर इज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑलवेज नंबर 1 पे देयर विल बी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं? देयर विल बी ट्यूमर्स, लाइक ट्यूमर्स, फॉरेन बॉडीज एंड occasionally if the mucus भी obstruct कर सकता है। ठीक है, and under these conditions the bronchiectasis is localized to the obstructive lung segment. So bronchiectasis can also be so it can also be complicate the atopic asthma को और chronic bronchitis को complicate कर सकता है। Okay, and the second जो चीज कर सकती है, number 1 was bronchial obstruction, ठीक है, and second will be congenital or hereditary condition। ठीक है, उसमें बहुत कम होती है। उसमें नंबर 1 पे देयर विल बी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। ठीक है, इट विल cause a severe bronchiectasis result from obstruction and infection caused by the secretion of abnormally viscid mucus। ओके, क्या है, दिस इज वेरी, ये बहुत सीरियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एंड सेकंड जो इसमें हो सकता है कंजेनिटल और हेरिडिटरी कंडीशन में, सेकंड देयर कैन बी इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स। ठीक है, देयर आर आल्सो सम इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स जिसके अंदर ये ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा कार्डियक सिंड्रोम भी जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देयर कैन बी नेक्रोटाइजिंग और सपोर्टिव निमोनिया। ठीक है, particularly if it is caused by the इसमें Staphylococcus aureus या Klebsiella species cause कर। ठीक है, तो it can lead to the predisposed to the in patients को it will predispose to bronchiectasis। तो in the past, post-infective bronchiectasis was sometimes a sequel to the childhood pneumonia that complicated measles, whooping cough और influenza जैसे सारे। ठीक है, अच्छा, what will be the pathogenesis? Pathogenesis में आपको पता होना चाहिए there are two processes, इसमें crucial and intertwined in the pathogenesis में दो होते हैं। Number 1 there is always obstruction and chronic persistent infection। ठीक है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1 इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड द सेकंड इज chronic persistent infection। ओके, आपने इसकी मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस है? मॉर्फोलॉजी में दोनों आ जाती हैं, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ठीक है, एंड व्हाट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स और व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल कोर्स इसका क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देयर विल बी ऑलवेज सीवियर परसिस्टेंट कॉफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोप्रूलेंट एंड समटाइम्स विद heated sputum के साथ भी हो सकता है। The sputum may contain flecks of blood, frank hemoptysis can occur and symptoms they are often episodic and are precipitated by upper respiratory tract infection or the introduction of a new pathogen। ठीक है, और इसके अलावा इन पेशेंट्स में देयर कैन बी डेवलपमेंट ऑफ क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों पढ़ना शुरू कर दो। अब आप लोगों का टेस्ट है, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, ये होगी क्लास में।